साथ ही टाटा मोटर्स लंबडिंग आपके लिए लेके आए हैं बुसुडिमा स्पेशल ऑफर। अगर आप इस महीने की 25 तक बुकिंग करते हैं टाटा योद्धा तो फिर आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट और उसके साथ साथ मिलेगा एक 32 इंच की एलईडी टीवी। नमस्कार, आप सभी का एनडीएच में स्वागत है। चलिए नजर रखते हैं आज की पहली खबर पर। आज दिमा हसाओ के हाफलोंग शहर में डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में दिमा हसाओ के डीसी नजरीन अहमद के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और आज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2022 का फाइनल इलेक्टोरल रोल लिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को सौंपा गया। और आज की उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे दिमा हसाओ के डीईओ ब्रूहित राबा, डीआईपीआरओ पुरबी फोंगलो, इलेक्शन ब्रांच ऑफिशियल्स और अन्य सारे लोग भी आज की उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। चलिए आपको दिखाते हैं आज के उस कॉन्फ्रेंस की कुछ तस्वीरों को। And a very happy new year to all of you. Thank you. So today we have our parties there. Today we are going to publish. We have the final voters electoral roll 2022. It's been published today, and we are going to hand it over to our political parties. And as per directions of Government of India as well as the Government of Assam Election Department. Also, we will be handing over a soft copy to the political parties without photographs, of course. That has been instructed as per the Government of Assam. So there will be no photographs in the soft copy. This will be available, the electoral rolls will be available in all the designated locations in the polling stations with the BLOs. So anybody who wants to actually see if the name is there or not can go to those designated locations, as well as in the election department also here. Here, as you all know where the election department is, so they can also have a look here also. Also there's another helpline, voters helpline. You can get it downloaded from the Play Store, and anybody who wants to check whether the names are there or not can check it through the helpline also. So I appeal to all of you to have a look at it and be a sensible citizen and go for a voting. And I'd also like to let you know that we have 242 designated locations here in the district, and there is, as per electoral rolls of the draft electoral rolls of 2021, we had a total of 1,47,750 voters. Now it has gone a little up, marginally up in the final voters electoral rolls. It has gone up by 2 numbers, 1,232 numbers. Now it is 1,48,982. If you want, the male and female breakup is for this year is 74,549 male, and it's 74,433 female. So for this year, I'm talking about the final list. Voters are, when they reach 18 years, they can vote. So 3,198 are the new voters here, out of which we have male consisting of 1,499 male new voters, and female new voters are a little more than male, 1,699 are female voters. So this is how we have the breakups, and we have little marginal increase. So I again appeal to all of you to tell the people that they can actually check at anywhere, like it's available online, it's available at designated locations. So thank you. If you have, now we'll start the process of handing over. साथ ही टाटा मोटर्स लंबडिंग आपके लिए लेके आए हैं बुसुडिमा स्पेशल ऑफर। अगर आप इस महीने की 25 तक बुकिंग करते हैं टाटा योद्धा तो फिर आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट और उसके साथ साथ मिलेगा एक 32 इंच की एलईडी टीवी। चलिए नजर रखते हैं आज की दूसरी खबर पर। असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा ने पूरे असम प्रदेश में जीरो एक्सीडेंट केसेस और नागरिकों को ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया।
और यह अभियान दिमा हसाओ के अलग अलग जगहों पर भी चलाया गया। चलिए अभी आपको दिखाते हैं दिमा हसाओ के हाफलोंग शहर से इस अभियान के कुछ दृश्य। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जीरो एक्सीडेंट के तहत एक स्टेप लिया और उसमें समग्र असम में एक अभियान चलाया। समग्र असम के साथ दिमा हसाओ के भी विभिन्न स्थानों में ये अभियान दिखाई दिया। तो इसी के साथ हमारे यहाँ उपस्थित है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो हमारे इंचार्ज, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप लोग जो अभी जो जीरो एक्सीडेंट के तहत जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने, असम का चीफ मिनिस्टर ने जो स्टेप लिया, उसके तहत आप लोगों ने कब से ये शुरू किया? हम लोग का रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर का जो जीरो एक्सीडेंट का अभियान जो शुरू किया है, उसमें आज तक हम लोग 25 दिसंबर 2021 से शुरू किया। अभी तक हम लोग का केस हुआ है 200 अबव केस पकड़ा है हम लोग आज तक। इसमें जो आप लोग मतलब किस किस चीज़ों को लेके आप लोग लोगों के अंदर अवेयरनेस और फाइन्स वगैरह जो कर रहे हैं, जो वे फाइन्स का तो मेन आपका वो है कि लोगों का बीच में अवेयरनेस आए, तो इसमें आप लोग किस किस चीज़ों को का ऊपर फाइन कट रहे हैं? हम लोग अभी सीट बेल्ट का, हेलमेट का और दूसरा कागजात जो फेल है वो सब भी हम लोग देख रहे हैं, अभी तक पकड़ा है। आप लोग जो इसमें कर रहे हैं, इसमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलके इसमें आप लोग अभी ये अभियान चला रहे हैं? हम लोग के साथ कोऑपरेट किया है ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज और हम लोग का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिमा हसाओ। अच्छा, आप लोगों ने जो ये अवेयरनेस चलाया, तो आप लोगों ने 25 तारीख से ये जो चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, इसके तहत आपने क्या देखा? लोगों के अंदर कितना अवेयरनेस आया? लोग डबल हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, सीट बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपका नज़रों में कैसा आया? अभी तक हम लोग जितना देखा पकड़ा, अभी तक पूरा पब्लिक के पास में पूरा अवेयरनेस आ चुका है। अभी तक सीट बेल्ट ज़्यादातर लगाता है, हेलमेट 2 आदमी हेलमेट अभी लगाता है। अच्छा, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि ये बात कि लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, तो आप लोग जैसे 25 तारीख से जब स्टार्ट किया, उसमें क्या पहले फाइन्स जो पहले ज़्यादा है, अभी के दिनों में कम हो रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, अभी तो ज़्यादातर लगा हुआ है, तो हम लोग का मतलब अवेयरनेस आने के बाद तो थोड़ा केस भी कम हुआ है आगे से देखने से। तो ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, तो उन्होंने जो बात कहा कि ये चीफ मिनिस्टर ने जो एक स्टेप लिया है जीरो एक्सीडेंट का, और इसी के तहत इन लोगों ने जो एक अवेयरनेस ड्राइव चलाया है, तो उसमें उन लोगों ने हेलमेट में जो राइडर यूज़ करते हैं और उसके साथ में जो पीछे बैठने वाले, उनको भी हेलमेट यूज़ करना ज़रूरी है। साथों साथ जैसे कि सीट बेल्ट यूज़ करना है और ड्रिंक एंड ड्राइव, इसमें भी ध्यान दिया गया है। और साथों साथ जो ड्राइविंग के वक्त मोबाइल के यूज़ ना करें, इन चीज़ों का ऊपर ध्यान दिया गया है। तो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर ने जो एक जीरो स्टेप का जो ये एक अभियान चलाया, एक स्टेप लिया, उसके तहत देखा गया कि लोगों के अंदर में भी काफ़ी एक अवेयरनेस आया है और लोगों ने इसको मानना शुरू किया है। तो जहाँ तक देखें, ये सिर्फ कोई डिपार्टमेंट, ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट का दायित्व नहीं है। इस तरह की जो अवेयरनेस है हम नागरिकों का बीच में आना चाहिए, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो और लोगों का जान बचे।